My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing all the 20 questions from SJNP 2025 examination. And all these questions are memory based, तो एक दो questions में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है. कमेंट में मेंशन करना कि कहाँ पे क्या डिफरेंस था. ऑप्शंस कई सारे क्रिएटेड होंगे, बट बाकी सारा डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड वील ऑल्सो बी डिस्कसिंग द प्रॉबल कट ऑफ्स. ओके, सो इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू लाइक द कंटेंट, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो मैनेज कर लेना उसको. So first question, a water tank has 3 taps A, B and C. A fills 4 buckets in 24 minutes, B fills 8 buckets in 1 hour and C fills 2 buckets in 20 minutes. If all the taps are opened together, a full tank is emptied in 2 hours. If a bucket can hold 5 liters of water, what is the capacity of the tank? So first of all, we'll be doing the doable questions, the easy ones out of the 20 questions. कौन से questions ऐसे थे जिन्हें पिक करना चाहिए था एग्जाम में और अटेम्प्ट करना था. ठीक है. सो क्वेश्चन कह रहा है 3 टैप्स है एबीसी. ए कैन फिल 4 बकेट्स इन 24 मिनट्स, यानी कि ए कैन फिल 1 बकेट इन 6 मिनट्स. ओके. बी कैन फिल 8 बकेट्स इन 1 आवर, यानी कि 1 बकेट में टाइम कितना लगेगा 7.5 मिनट्स पर बकेट. सी कैन फिल 2 बकेट्स इन 20 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट्स पर बकेट. And question is suggesting that if all the taps are open together, a full tank is emptied in 2 hours. यानी in 2 hours पूरे 2 hours A वर्क करेगा, पूरे 2 hours B वर्क करेगा, पूरे 2 hours C वर्क करेगा. A कितनी बकेट्स फिल करेगा 2 hours में? 6 मिनट्स पर बकेट. सो टोटल नंबर ऑफ बकेट्स विल बी 120 by 6. 20 buckets in 2 hours. Tap B will be filling 120 by 7.5 या 120 by 15 by 2. So this will be 240 by 15, which is 16 buckets. And C will be filling 120 by 10, 12 buckets. So total buckets filled will be 20 plus 16 plus 12, 48 buckets in total. And one bucket is holding 5 liters of water. The total capacity will be 48 into 5, which is 240 liters. Answer will be 240 liters. Option B will be the answer. क्या appreciate कर पा रहे हो? Clear? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, a right circular cone, a right circular cylinder and a hemisphere all have the same radius and the height of cone and cylinder equal their diameters, then their volumes are proportional respectively to what values? So there is a cone, a cylinder and a hemisphere. Also given that height of the cone and cylinder equal their diameters. Radius सबका सेम है और height of cone and cylinder is equal to their diameters, यानी कि height is equal to 2 times of radius 2r. And formula for volume of cone is 1 by 3 pi r square h. ठीक है. So 1 by 3 pi r square और h की जगह क्या आ जाएगा 2r. For cylinder this will be pi r square h. So pi r square into 2r. And for hemisphere this will be 2 by 3 pi r cube. So this value becomes 2 by 3 pi r cube. This is 2 pi r cube. This is 2 by 3 pi r cube. So 2 pi r cube तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 by 3 is to 1 is to 1 by 3. 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रेशियो विल बी 1 is to 3 is to 1. 3 से मल्टीप्लाई करते रिजल्ट आ जाएगा हमारा 1 is to 3 is to 1 फॉर कोन, सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर रिस्पेक्टिवली. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. क्लियर है? तो दिस वाज डेफिनेटली डूएबल क्वेश्चन. फॉर्मूलास तुम्हें पता होने चाहिए थे बस. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, a question on quantity comparison. Last week Martin received $10 in commission for selling 100 copies of a magazine. Last week Miguel sold 100 copies of this magazine. He received his salary of $5 per week plus a commission of 2 cents for each of the first 25 copies sold, 3 cents for each of the next 25 copies sold, and 4 cents for each copy thereafter, and $1 is equal to 100 cents. So Martin's commission क्या हुआ? Martin का commission क्या हुआ? $10. फर्स्ट क्वांटिटी इज $10 और कमीशन ऑफ मिगुल क्या होगा? $5 तो वैसे ही मिला है उसको, प्लस 2 cents फॉर फर्स्ट 25 कॉपीज. तो
0.02, 2 सेंट्स मिला है तो $0.02 के बराबर होगा, तो 0.02 इंटू 25, फर्स्ट 25 कॉपीज का। नेक्स्ट 25 के लिए मिला है 3 सेंट्स, तो प्लस 0.03 इंटू 25, इजंट इट सो? नेक्स्ट 25, टोटल 100 कॉपी सेल किया है, तो बचे हुए 50 के लिए क्या होगा, 4 सेंट्स पर कॉपी, तो 0.04 इंटू 50 फॉर लास्ट 50 कॉपीज। टोटल आ जाएगा हमारा 5 प्लस 0.50 प्लस 0.75 प्लस 2.00, सो दिस वुड बी 2 प्लस 1.25, 3.25 प्लस 5, $8.25, $8.25. The first is definitely greater than second. Option A will be the answer. Clear है? Okay. Option A will be the answer. Next question. Question number 4. A container has 40 liters milk. 8 liters of milk is taken out and replaced with an equal quantity of water. तो initially 40 liters milk था container में. 8 liters is taken out and then 8 liters of water is replaced. ठीक है, सो 8 liters हमने मिल्क तो निकाल लिया और उसमें फिर वाटर रिप्लेस कर दिया। देन 10 liters इसके बाद में अब जो सॉल्यूशन बना है हमारा, उसमें से 10 liters टेक आउट किया सॉल्यूशन को और फिर 10 liters वाटर में मिक्स कर दिया। देन 2 स्टेप्स आर रिपीटेड वंस अगेन, यानी फिर से एक बार 8 liters रिमूव करेंगे, 10 liters वाटर ऐड करेंगे, 10 liters रिमूव करेंगे, 10 liters वाटर ऐड करेंगे। सो आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा? सो फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क बाय टोटल in any such case, final ratio of milk by total is equal to initial ratio of milk and total multiplied by replacement factor. ठीक है, रिप्लेसमेंट फैक्टर। तो फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, 8 liters रिमूव कर रहे हैं आउट ऑफ 40, 40 में से 8 liters रिमूव कर रहे हैं, बच क्या रहा है, जो बच रहा है उतना ही मिल्क बचेगा। 40 में से 8 liters मिल्क तुमने रिमूव कर दिया, बचा हुआ कितना है, 32 liters, दैट विल बी मिल्क। सो 32 इज रिमेनिंग आउट ऑफ टोटल 40, क्योंकि 8 को तुमने रिमूव किया है, तो रिप्लेसमेंट फैक्टर क्या हो जाएगा, 32 इज रिमेनिंग आउट ऑफ 40, 32 by 40 इज 4/5, तो मिल्क बचेगा 4/5, तो इनटू 4/5 कर दिया। नाउ सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, वी आर रिमूविंग 10 liters ऑफ द मिक्सचर, क्योंकि अब तो मिल्क अकेला बचा नहीं, वाटर भी मिक्स हो गया, अब तो सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन में से तुमने 10 liters रिमूव किया है, तो अगर 40 में से 10 रिमूव करोगे, क्योंकि हमारा टोटल वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, जितना रिमूव किया है उतना ही रिप्लेस कर दिया है, 10 liters रिमूव करोगे 40 में से, तो बचेगा 30 liters, तो 30/40 यानी कि 3/4 विल बी रिप्लेसमेंट फैक्टर, तो इंटू 3/4। और फिर यही सेम चीज फिर से एक बार रिपीट करना है, तो अगेन इंटू 4/5 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट। सो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल रेशियो क्या था मिल्क और टोटल का, इनिशियली हमारा जो सॉल्यूशन था पूरा का पूरा मिल्क ही था, तो मिल्क और टोटल का रेशियो 1:1 था, नहीं 1 था, दिस वाज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 3/5 इंटू 3/5, दिस बिकम्स 9/25, और दिस इज फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड टोटल। तो मिल्क इज 9 यूनिट्स और 25 यूनिट्स हो गया हमारा टोटल, विच इंक्लूड्स मिल्क एज वेल एज वाटर। तो अगर मिल्क 9 यूनिट्स है, टोटल हमारा 25 है, तो वाटर कितना होगा, वाटर होगा 25 - 9 विच विल बी 16, तो मिल्क और वाटर का रेशियो फाइनली विल बी 9:16। ऑप्शन ऑर्डर है मिल्क एंड वाटर का 9:16, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ठीक है, ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं एग्जाम में, बट क्वेश्चन यही था। ओके, क्लियर है, आंसर होगी 9:16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर तुम्हें बिल्कुल बेसिक भी आता है फंक्शनल ग्राफ्स का, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था एग्जाम में, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, तुम जानते होगे। fx इज इक्वल टू 2x + 3, gx इज इक्वल टू x - 3/2, और क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x fx इज इक्वल टू gx - 3। तो अगर gx है हमारा x - 3, तो gx - 3 का वैल्यू क्या होगा, gx - 3 विल बी x की जगह x - 3 पुट कर दोगे, तो x - 3/2 which will be x - 6/2. So fx is equal to gx - 3. So 2x + 3 is equal to x - 6 divided by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x + 6 is equal to x - 6, and hence 4x - 6, 3x will be equal to -12. So x will be equal to -4. Value of x should be -4. Option C will be the answer. क्लियर है? ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता, वैसे तो
सिंपल प्रोसेस है, तो वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते थे कि -3 पुट कर लेते, ठीक है। बट ध्यान ये देना था g ऑफ x -3 करना था हमें, तो g ऑफ -6 करते हैं, यानी कि वहां -6 पुट करते, तो तब भी ये तो इतना तो कॉन्शियस तब भी रहना पड़ता। क्लियर है? x इज इक्वल -4 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। A man earns rupees n square plus 2 for his work of n days. He does not spend any money on the first 3 days of his work. However, from the 4th day onwards, his total spending becomes rupees n plus 14 for first n days. On which day would his savings be more than rupees 100 for the first time? अर्निंग है उसका n days का रुपीज n स्क्वायर प्लस 2। पहले 3 दिन कुछ भी स्पेंडिंग नहीं करता है, बट 4th डे ऑनवर्ड्स हिज टोटल स्पेंडिंग बिकम्स रुपीज n प्लस 14 फॉर फर्स्ट 10 days। तो कौन सा ऐसा दिन होगा जबकि उसकी सेविंग्स 100 रुपीज को क्रॉस करेगा? दैट इज द क्वेश्चन। ओके, सो ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। तो डे 10 पे सिनेरियो क्या होगा ये देख लेते हैं। हिज अर्निंग या इनकम बाई डे 10, और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करोगे, सो विल बी गेटिंग सेविंग्स। इनकम है डे 10 पे क्या होगा, n की जगह 10 पुट करोगे, n स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्सपेंडिचर विच विल बी 10 प्लस 14, so this becomes 100 plus 2 102 minus 26 which is coming out to be 76, so this is less than 100। डे 11 पे देखते हैं, डे 11 पे हो जाएगा 121 plus 2 123 minus 11 plus 14 25 minus 25, so this will be 98। डे 12 पे this will be 144 plus 2 146 minus एक सेकेंड गड़बड़ किया है यहाँ पे, पहले वाले केस में वैल्यू 24 आएगा और ये 78 वैल्यू होगा। नाउ दिस विल बी 26, सो वैल्यू आ जाएगा हमारा 120 विच इज ग्रेटर देन 100। सो डे 12 इज द फर्स्ट डे, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, 12 डे विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now question number 7. तो दिस क्वेश्चन हैड अ प्रॉब्लम, और ये क्वेश्चन हमने सेशन में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक्स में मैंने ये क्वेश्चन दिया था, बट द ओनली डिफरेंस इज कि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो एक्चुअल में दिस क्वेश्चन शुड बी कि फ्रॉम द एवरेज स्पीड फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ वाज 1.5 एज मच। दिस वाज द राइट क्वेश्चन, बट इंस्टेड एग्जाम में वन एंड पार्ट को मिस कर दिया। तो उन्होंने जब ये क्वेश्चन उठाया तो वन एंड वाला पार्ट जो है उसको मिस कर दिया। ओके, और प्रॉब्लम ये हुआ इसकी वजह से जो उन्होंने ऑप्शंस दिए फिर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा एग्जाम में, एंड दैट इज वाई दिस इज एक्चुअली इनकरेक्ट क्वेश्चन। बट जैसा कि होता है एग्जामिनेटिंग एग्जाम में, यहां पे क्योंकि द रिस्पॉन्स शीट इज नॉट रिलीज्ड, सो चांसेस आर दैट दिस क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड एज सच, और इसका जो आंसर उन्होंने एज्यूम किया होगा, यानी कि जो एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर आएगा, जबकि क्वेश्चन हमारा होता कि 1.5 टाइम्स, वही आंसर वो एज्यूम करेंगे, और एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर वाज 42 किलोमीटर पर आवर। इफ एक्चुअल क्वेश्चन गिवन होता कि 1.5 एज मच, तो उस केस में आंसर आता 42 किलोमीटर पर आवर। सो दैट आंसर, अगर तुमने 42 किलोमीटर पर आवर गलती से ही मार्क किया है तो चांसेस आर कि तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी आंसर मार्क किया है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे और क्वेश्चन रिमूव नहीं होगा। तो ये बात मान के चलनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एज इट इज अभी हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं सॉल्यूशन क्या आएगा और तुम से गलती कहां पे हो सकता है, ठीक है। तुमसे क्या गलती तो एग्जामिनर ने किया है या पेपर सेटर ने किया है कि उसने इस क्वेश्चन को एज इट इज जैसा होना चाहिए था वैसा ही रखा है, 2 वर्ड्स मिस हो गए और पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। तो श्याम वेंट फ्रॉम दिल्ली टू शिमला वाया चंडीगढ़, तो दिल्ली टू शिमला वाया चंडीगढ़। द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इज 3/4 टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला। तो दिल्ली से चंडीगढ़ डिस्टेंस हमारा 3/4 टाइम्स है, यानी कि अगर 4x डिस्टेंस होगा हमारा फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला, तो दिल्ली से चंडीगढ़ डिस्टेंस विल बी 3x। देन द एवरेज स्पीड फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ was half as much as that from चंडीगढ़ to शिमला, ठीक है। तो अगर चंडीगढ़ से शिमला का स्पीड हमारा 2s है, so speed from दिल्ली to चंडीगढ़ will be s only, half of that. Question is saying average speed for the entire journey was 49 km per hour. So average speed for the entire journey will be total distance by total time. Total distance है 3x plus 4x यानी कि 7x. Total time क्या होगा? From दिल्ली to चंडीगढ़ time will be distance by speed is 3x by s plus from Chandigarh to Shimla this will be 4x by 2s. So this becomes 3x by s plus 2x by s, यानी कि 5x by s, 7x upon 5x upon s.
x से x कैंसिल आउट होगा, 7s/5 दिस विल बी एवरेज स्पीड, और 7s/5 as per the date of the question should be equal to 49. 7 sevens are 49. S is equal to 7 into 5 35. S is equal to 35 किलोमीटर पर आवर, और क्वेश्चन पूछा एवरेज स्पीड फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला, और चंडीगढ़ टू शिमला की स्पीड है 2s, तो 2s विल बी इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर. So this should be the answer for the given question, बट कहीं पे ऑप्शन में गिवन नहीं है. और मैं जैसा मैंने बताया कि अगर तो 42 मार्क किया होगा तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे बिकॉज 70 इज नॉट इन द आंसर, और क्वेश्चन रिमूव नहीं होगा बिकॉज रिस्पॉन्स रिलीज होता है, ऑब्जेक्शन रेज करने का कोई स्कोप है ही नहीं. अब सॉल्व करते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था, सो दैट पता चल जाए कि 42 आंसर क्यों आएगा. ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन वाज 1.5 टाइम्स, 1.5 एज मच. तो उस केस में फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ टू शिमला, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज 3x, दिस इज 4x, और 1.5 एज मच एज दैट फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला. तो चंडीगढ़ शिमला का जो स्पीड था उसका 1.5 टाइम्स, यानी कि अगर 2x हमारा 2s स्पीड होता चंडीगढ़ से शिमला का, सो दिस स्पीड विल बी 3s. सो नाउ द क्वेश्चन इज चेंजिंग, एवरेज स्पीड विल बी 7x डिवाइडेड बाई 3x/3s प्लस 4x by 2s. So 7x upon x by s plus 2x by x यानी कि 3x by s. x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 7s/3. And since 7s/3 this is equal to 49, so s is equal to 21 किलोमीटर पर आवर, और हमारा चंडीगढ़ शिमला का स्पीड है 2s, so this will be 2 into 21, 42 किलोमीटर पर आवर. So this will be the answer to the actual question, and this is a CAT 1994 PYQ. Okay, clear है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हाट इज द लीस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1856 सो दैट द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 12 and 16 विल लीव द सेम रिमाइंडर 4. 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर 4 आएगा, 12 से डिवाइड करो रिमाइंडर 4 आएगा, 16 से डिवाइड करो रिमाइंडर 4 आएगा. सो दैट नंबर शुड बी क्या होना चाहिए, जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एलसीएम ऑफ दीज वैल्यूज. सो एलसीएम ऑफ 7, 12 and 16, अगर 7, 12, 16 का तुम एलसीएम लोगे तो दैट वैल्यू विल बी परफेक्टली डिविजिबल बाय 7, 12 and 16, बट हमें रिमाइंडर 4 चाहिए तो साथ में 4 ऐड कर दोगे. अब अगर एलसीएम में कोई तो मल्टीपल भी लोगे तो वो भी जब डिवाइड करोगे मल्टीपल को 7, 12 and 16 से रिमाइंडर 0 आएगा, बट 4 ऐड कर दोगे तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा. सो दिस विल बी जनरल सॉल्यूशन. और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1856, यानी कि 1856 से क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सा होगा जो कि इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, दैट इज आवर पर्पस. तो 7, 12, 16 का एलसीएम क्या आने वाला है, दैट विल बी 12 और 16 का एलसीएम है 48, तो 48 into 7 का मल्टीपल प्लस 4 which will be 336k प्लस 4. तो फॉर k इज इक्वल टू 5 हम क्लोजेस्ट पहुंच जाएंगे 1856 के, तो k इज इक्वल टू 5 पुट करोगे वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस विल बी 300 into 5 1500 प्लस 180 1680 प्लस 4, तो 1684 इज द क्लोजेस्ट नंबर, क्योंकि अब इससे अगला नंबर k इज इक्वल टू 6 लोगे यानी 336 ऐड करोगे तो नंबर बाय 2000 से बड़ा हो जाएगा. हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड थोड़ी करना है, तो 1684 में कितना ऐड करोगे 1856 आ जाए. So answer will be 172. 172 must be added. Option D will be the answer. Okay. Clear है? Option D will be the answer in this case. Okay. Next question करते हैं. Next question. Now ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख के खतरनाक लग रहा है, बट क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है जितना ये लग रहा है, जितना ये क्वेश्चन लग रहा है. और ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था अपने सेशन में, अपने प्रैक्टिस सेशन में ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ एग्जामिनेटर के लिए. घोष बाबू इज स्टेइंग एट घोष हाउसिंग सोसाइटी अ घोष कॉलोनी दिघोषपुर इन कैलकाटा. तो बहुत सारा फैक्टर्स है. घोष हाउसिंग सोसाइटी अ घोष कॉलोनी दिघोषपुर इन कैलकाटा. इन घोष हाउसिंग सोसाइटी 6 persons रीड डेली गणशक्ति एंड 4 रीड आनंद बाजार पत्रिका. इन हिज सोसाइटी देयर इज नो पर्सन हु रीड्स बोथ the newspapers. Total number of persons who read these two newspapers in Aghosh colony and Dighoshpur are 52 and 200 respectively. Number of persons who read Gana Shakti in Aghosh colony and Dighoshpur are 33 and 121 respectively. While the persons who read Anand Bazar Patrika in Aghosh colony and Dighoshpur are 32 and 117 respectively. तो number of persons in Aghosh colony who read both the newspapers क्या होगा? फोकस किस पे है हमें? 2 ही न्यूज़पेपर्स है और अघोष कॉलोनी पे. बेसिकली वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और हमारा फोकस सिर्फ होना चाहिए अघोष कॉलोनी पे, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा है नंबर ऑफ पर्सन्स अघोष कॉलोनी हू रीड बोथ द न्यूज़पेपर्स. तो एक हमारा वेन डायग्राम पर सेट आ गया
for those who read Ganashakti newspaper, and second will be for Anand Bazar Patrika. Ganashakti, and second will be for Anand Bazar Patrika, ABP. ठीक है, ABP, the name ABP News is read with Anand Bazar Patrika, Ganashakti and ABP. ओके, अब सिर्फ फोकस करेंगे आगोश कॉलोनी पे, और क्वेश्चन क्या बता रहा है, आगोश कॉलोनी में टोटल नंबर ऑफ पर्संस who read these two newspapers in Aghosh colony, that number is 52. So total is 52. In Aghosh colony, total is 52. And number of persons who read Ganashakti in Aghosh colony are 33. So this number is 33. बहुत सारा इन्फॉर्मेशन irrelevant है जो जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए. And number of persons who read Anand Bazar Patrika in Aghosh colony are 32. This number is 32. So common क्या होगा भाई, नंबर ऑफ पर्संस हु रीड गणशक्ति आर 33, टोटल 52 है, तो 33 प्लस 19 इज 52, यानी कि 19 आर दोज हु रीड ओनली आनंद बाजार पत्रिका, जो सिर्फ आनंद बाजार पत्रिका पढ़ते हैं, और आनंद बाजार पत्रिका के टोटल रीडर्स है 32, तो 19 नंबर आ रहा है ओनली आनंद बाजार पत्रिका, तो 13 विल बी दोज हु आर रीडिंग बोथ द न्यूज़पेपर्स. बस क्वेश्चन खत्म, 30 इज द आंसर. एंड सिमिलरली गणशक्ति, ओनली गणशक्ति रीडर्स आर 20, so this will be complete information. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30. बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, कुछ भी करने की जरूरत इसके अलावा थी ही नहीं. बाकी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. हाँ, उसको अरेंज करना होता तो कैसे अरेंज करते हैं वो चीज भी देख लेते हैं, कि अगर मैं घोष हाउसिंग सोसाइटी के लिए भी इन्फॉर्मेशन अरेंज करना होता, घोष कॉलोनी के लिए भी अरेंज करना होता, दिघोषपुर के लिए भी अरेंज करना होता, तब फिर क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल बन जाता. तो उसको भी अरेंज करके देख लेते हैं एक बार, कि या तो तुम सेपरेट वेन डायग्राम्स बनाते या एक ही वेन डायग्राम में सबको एडजस्ट करते, बट एक में एडजस्ट करते तो एक ऑर्डर जरूर इंपॉर्टेंट होता, कि सब चीजें एक ऑर्डर में रखते. ओके, तो जैसे हमने एक इन्फॉर्मेशन निकाली लिया है, दैट इन्फॉर्मेशन फॉर अघोष कॉलोनी, तो अघोष कॉलोनी का नंबर आ गया 2013-19, 2013-19. दिस इज फॉर अघोष कॉलोनी. ठीक है, अघोष कॉलोनी एंड गणशक्ति एंड एबीपी. ओके, और नंबर क्या आ रहा है हमारा, अघोष कॉलोनी का नंबर है, यहां पे नीचे भी तीनों के लिए नंबर्स नोट डाउन कर लेते हैं. फॉर अघोष कॉलोनी नंबर वाज 33 एंड 32. सिमिलरली फॉर दिघोषपुर, टोटल नंबर क्या है भाई, यहां तो 52 था, टोटल नंबर ऑफ रीडर्स आर 200 फॉर दिघोषपुर. Out of 200, 121 are readers of Ganashakti, 121, and 117 are the readers of ABP, आनंद बाजार पत्रिका. ठीक है, टोटल रीडर्स है 200, और 200 से 121 आर द रीडर्स ऑफ गणशक्ति, तो बचे हुए कितने हुए 79. 79 मस्ट बी द नंबर ऑफ रीडर्स ऑफ आनंद बाजार पत्रिका ओनली, और टोटल आनंद बाजार पत्रिका रीडर्स है 117, तो 117 minus 79 which will be 21 plus 17, 38. 38 will be readers of both Ganashakti as well as आनंद बाजार पत्रिका. तो ओनली गणशक्ति वाले रीडर्स कितने होंगे, 121 minus 38 which will be 83. ओके, क्लियर है, टोटल 200 आ गया. अब इसी तरह से अगर हमें डेटा चाहिए, उसके लिए डेटा अपना किसके लिए चाहिए, अब घोष हाउसिंग सोसाइटी के लिए, GHS. और घोष हाउसिंग सोसाइटी में देयर इज नो पर्सन हु रीड्स बोथ द न्यूज़पेपर्स, यानी कि दिस वैल्यू विल बी 0. 4 रीड आनंद बाजार पत्रिका एंड 6 रीड गणशक्ति. तो सारा डेटा हमारे पास एक टेबल में आ गया. अब अगर मल्टीपल क्वेश्चन इस सेट में होते तो हम इजीली सॉल्व कर पाते. सारा डेटा हमने अरेंज कर दिया. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? दिस नंबर 6, दिस इज 4. दिस इज कंप्लीट डेटा ऑफ द क्वेश्चन. हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतना ही डेटा काफी था, बट अदरवाइज दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन व्हाटसोएवर फ्रॉम दिस गिवन डेटा. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. ई, एफ, जी एंड एच. अब इस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि बताना कि एग्जैक्टली लैंग्वेज क्या था क्वेश्चन का, बट अल्टीमेटली जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे हम. कि ई, एफ, जी एंड एच have covered the distances x, ax, x plus a and x minus a kilometer respectively in y, ay, y plus a and y minus a hours respectively. If it is known that x is greater than y, तब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. x is greater than y, then which of them had the highest average speed?
सो ई एफ जी एच में से हाईएस्ट एवरेज स्पीड किसका होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम. तो ई के लिए डिस्टेंस इज एक्स, टाइम इज वाई, तो एक्स बाई वाई विल बी एवरेज स्पीड फॉर ई. फॉर एफ दिस विल बी ए एक्स अपॉन ए वाई. बट ए बाई ए है तो ए से ए तो कैंसल आउट हो जाएगा. तो दीज टू वैल्यूज विल बी इक्वल, यानी कि एवरेज स्पीड ऑफ ई एंड एफ विल बी इक्वल. और जब इक्वल है तो हाईएस्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि हाईएस्ट अगर एक के लिए होगा तो दूसरे के लिए भी होगा, यानी कि ये तो आंसर नहीं होंगे. ये तो पक्की बात है. ठीक है, अब फिर वैल्यूज आगे हमारा जी के लिए क्या होगा? एक्स प्लस ए अपॉन वाई प्लस ए. एंड फॉर एच दिस विल बी एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस ए. तो क्वेश्चन आस्किंग विच वैल्यू विल बी हाईएस्ट, विच स्पीड विल बी हाईएस्ट. अब सिंपल तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चन में कि वैल्यूज एज्यूम कर लो. एज्यूम कर लो वैल्यूज. ठीक है, एज्यूम करने से चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि एक्स इज इक्वल टू, एक्स को वाई से बड़ा होना है तो एक्स इक्वल टू 3 मान लो. एक्स वाई से बड़ा है, एक्स बाई वाई विल बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एक्स इक्वल टू 3 आ गया, वाई इक्वल टू 2 आ गया. ओके, और ए इक्वल टू 1 मान लो. एक्स 3 है, वाई 2 है, ए 1 है. तो इन दैट केस एक्स बाई वाई विल बी 3/2. दिस विल ऑल्सो बी 3/2. एक्स प्लस ए बाई वाई प्लस ए क्या हो जाएगा? 3 + 1 / 2 + 1 यानी 4/3. 4/3. 3/2 इज ग्रेटर देन 4/3. और x माइनस ए बाई वाई से 3 - 1 / 2 - 1 यानी कि दैट विल बी 2/1. सो दिस विल बी हाईएस्ट. h का वैल्यू विल बी हाईएस्ट. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. क्लियर है? एंड दिस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन y. अगर इसका उल्टा होता, सेकंड केस लेते हैं हम. ओके, जस्ट इन केस अगर y ग्रेटर देन x होता. अब एग्जांपल ले लो कि y इज इक्वल टू 3 मान लो, x इक्वल टू 2 मान लो, और a को 1 ही रहने दो. अब क्या वैल्यूज आएंगी? x 2 है, y 3 है, तो 2/3. दिस इज ऑल्सो 2/3. ये तो इक्वल है. और x प्लस ए बाई वाई प्लस ए दिस विल बी 2 + 1 यानी 3/4. तो 2/3 इज लेस देन 3/4. दिस टाइम x प्लस ए बाई वाई प्लस ए इज ग्रेटर देन x बाई वाई या ax बाई ए वाई. और लास्ट वैल्यू x माइनस ए बाई वाई से दिस विल बी 1/2. सो इन दिस केस दिस इज लीस्ट. जो वैल्यू पहले हमारी मैक्सिमम आई थी अब वो मिनिमम आ रही है, और जो वैल्यू पहले हमारी मिनिमम आई थी दिस वाज मिनिमम, वो अब मैक्सिमम आ रही है. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो सिंस x इज ग्रेटर देन y तो हाईएस्ट विल बी x माइनस ए अपॉन y माइनस ए, यानी कि h का स्पीड विल बी हाईएस्ट. ओके, क्लियर है? अब लॉजिकली भी समझते हैं कि ऐसा क्यों है. देखो द डिफरेंस इज दैट x बाई वाई इज अवर स्पीड ऑफ e. ठीक है, e और f में तो कोई डाउट ही नहीं, दोनों की स्पीड इक्वल है. g के केस में क्या हो रहा है? वी आर इंक्रीजिंग x का डिस्टेंस बाई a. x इज कवरिंग a डिस्टेंस मोर, है कि नहीं? और y द टाइम, टाइम टेकन भी a से इंक्रीज कर रहे हैं. तो फ्रैक्शन में ऑब्जर्व करो, x बाई वाई हमारा फ्रैक्शन है जहां पे कि x इज ग्रेटर देन y. x हमारा y से बड़ा है, तो एज का जो इंक्रीज आ रहा है डिस्टेंस कवर्ड में, x में भी इंक्रीज a का ही आ रहा है, y में भी इंक्रीज जो हमारा a का ही आ रहा है. इज दैट इट? सो फ्रैक्शन में देखो कि x बाई y है हमारा इनिशियली फ्रैक्शन, एंड नाउ द फ्रैक्शन इज x प्लस a अपॉन y प्लस a. एंड इफ x इज ग्रेटर देन y तो a विल बी लेसर परसेंटेज इंक्रीज फॉर x देन y. यानी कि डिनोमिनेटर में इंक्रीज विल बी हायर in terms of percentage increase in comparison to numerator का increase, because numerator में जो a का increase आ रहा है. Isn't it so? क्या समझ पा रहे हो? ठीक है, कि जो हमारा इंक्रीज आ रहा है a का, क्योंकि वैल्यू हमारा जो है a दोनों केसेस में सेम है, न्यूमरेटर में भी उतना ही इंक्रीज है, डिनोमिनेटर में उतना ही इंक्रीज है. बट न्यूमरेटर में सिंस x इज ग्रेटर देन y तो a इज लेस परसेंटेज ऑफ x एज कंपैरिजन टू y. तो उस केस में हमारा वैल्यू डेफिनेटली x प्लस a y के केस में क्या होगा कि इन कंपैरिजन वैल्यू हमारा लोअर क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में इंक्रीज ज्यादा आ रहा है इन कंपैरिजन टू न्यूमरेटर, और जब डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा तो हमारा जो फ्रैक्शन है दैट विल ऑलवेज बी गेटिंग स्मॉलर. एंड दैट इज वाई दिस वैल्यू x बाई वाई विल बी ग्रेटर देन x प्लस a y प्लस a. अगर यहीं पे हमारा सब्ट्रैक्ट करोगे तुम वैल्यूज को तो डिनोमिनेटर में ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगा, क्योंकि इस बार वही सेम चीज क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो तुम, तो डिनोमिनेटर डिक्रीज ज्यादा फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू न्यूमरेटर. सो दैट इज व्हाई दिस वैल्यू विल बी मच मच ग्रेटर बाय द सेम लॉजिक. क्लियर है? ओके,
बाकी बेस्ट ऑप्शन था कि वैल्यू रख के पुट करके आंसर निकाल लो. Okay, so we've seen 10 questions, half the paper we have seen, and these questions were definitely doable. अगर एग्जाम कंडीशंस में तुम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली एक दो क्वेश्चंस हमारे थे जो टिपिकल थे. फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन भी इतना, अगर तुम वैल्यूज नहीं पुट करोगे तो ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारे समझना मुश्किल होगा डेफिनेटली. एंड इवन दिस क्वेश्चन, जो लैंग्वेज है इसका, अदरवाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिंपल है, बट लैंग्वेज जो है इतना सारा वो फंसा रहा है तुमको, वो तुम्हें एग्जाम में, एग्जाम कंडीशंस में करना है इस क्वेश्चन को, खतरे से खाली नहीं है. बिकॉज कह नहीं सकते ना, जब तक पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, अटेम्प्ट नहीं करोगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करोगे. हाँ, ये क्वेश्चन किया जा सकता है डेफिनेटली, एंड दिस क्वेश्चन वाज डेफिनेटली डूएबल, बट प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन ही गलत है. दैट इज अनफॉर्चुनेट. दिस वाज अ वेरी डूएबल क्वेश्चन, और बाकी जो क्वेश्चन है ये भी किया जा सकता था. दिस वाज ऑल्सो अ डूएबल क्वेश्चन, एंड ऑल दीज क्वेश्चन वर ऑल्सो डूएबल वंस. ठीक है, सो कमेंट में मेंशन करना तुमने इनमें से कितने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया था एग्जाम में और अटेम्प्ट किया था. ओके, सो एज फार एज कट ऑफ्स आर कंसर्न, बिकॉज पहले कट ऑफ का डिस्कशन कर रहे थे, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं इसके बाद में कि कितना कट ऑफ होना चाहिए. सच सिंस कट ऑफ्स आर 45 परसेंटाइल 50 परसेंटाइल फॉर क्वांट, तो उनके बारे में डिस्कशन करते हैं. सो इन जनरल, एज पर माई एनालिसिस ऑफ क्यूए सेक्शन, what I feel that 40 percentile should be at 2 net correct questions. 2 net correct questions, और 2 net correct means 6 marks. ठीक है, नेट करेक्ट की बात करें 6 मार्क्स, तो आई फील कि 5 भी हो सकता है. अगर 40 परसेंटाइल कैन बी एट 5 मार्क्स एज वेल, तो 5 से 6 मान लेते हैं. ठीक है, 50 परसेंटाइल which is the maximum cutoff for QA section for any category whatsoever, that will be at 3 net correct questions, which is from 8 to 9 marks. ठीक है, 9 मार्क्स पे यू आर सेफ, बट 8 मार्क्स पे भी चांसेस आर देयर. तो 40 परसेंटाइल कैन बी एट 6 मार्क्स एंड 50 परसेंटाइल कैन बी एट 9 मार्क्स. ओके, एंड 99 परसेंटाइल can be at 8 to 9 net correct, considering this paper, because this year paper is comparatively quite difficult in comparison to last year. So that is why 8 to 9 net correct should give you 99 percentile, which will be around marks from 24 to 27. Though my bet is that if you are scoring around 25, तो 25 might give you 99 percentile. ठीक है, 25 should give you 99% as per best of my knowledge. ठीक है, should give you 99 percentile. बाकी अदर फैक्टर्स आल्सो देयर कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कितने थे इस बार, कितने लोगों ने एग्जाम अटेम्प्ट किया, उस सब चीजों पे भी डिपेंड करेगा, बट दिस इज जनरल फीडबैक फ्रॉम माय साइड. ओके, क्लियर है. तो इफ यू आर गेटिंग मोर देन 3 नेट करेक्ट, देन यू आर सिक्योर, योर कट ऑफ्स फॉर क्यूए आर डेफिनेटली गोइंग टू बी क्लियर्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सो डिसाइड अकॉर्डिंगली. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में अगर अब तक सेशन पसंद आ रहा है और लाइक नहीं किया है तो डेफिनेटली लाइक जरूर कर देना, और अपना फीडबैक में कमेंट जरूर मेंशन कर सकते हो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो मोटिवेटिंग फॉर मी. ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. मे बी देखने में आसान लगे, देखने में आसान लगा होगा जिसको भी, उसने गलत किया होगा इस क्वेश्चन को, पक्की बात है, पक्की बात है. कोई भी A and B work at digging a ditch alternately for a day each. If A can dig a ditch in A days and B can dig that ditch in B days, will work get done faster if A begins the work. पंगा क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है will work get done faster if A begins the work. अगर तुमने assumption ये ले लिया है कि क्योंकि A अगर फास्टर वर्कर होगा तो डेफिनेटली वर्क जल्दी फिनिश हो जाएगा, isn't it so? तो यहाँ पे एक गलती तुमसे हो रही है. वो गलती क्या हो रही है, एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो, लेट अस से कि A and B are 2 workers. ओके, और डिच करना है हमें टोटल कितना, डिग अ डिच, कितना डिग करना है, टोटल 40 मीटर लेटर से डिग करना है, और ए डिग कर ले रहा है 4 मीटर्स पर डे और बी डिग कर रहा है 3 मीटर्स पर डे. ओके, तो फास्टर एफिशिएंसी कितना है इसका, है 1 है, ये फास्टर है, मोर एफिशिएंट है. बट अगर अल्टरनेटिव वर्क करेंगे तो टाइम कितना लगेगा, देखो अगर ए अकेला वर्क करेगा तो टाइम डेफिनेटली ए को कम लगेगा, बिकॉज ए को टाइम लगेगा टोटल 14/4 और बी को टाइम लगेगा 14/3. तो डेफिनेटली टाइम टेकन बाई ए इज लेसर देन टाइम टेकन बाई बी, ये तो ऑब्वियस है. बट अगर अल्टरनेट वर्क करेंगे तब सिनेरियो क्या होगा, देखो फर्स्ट डे 1 पे ए वर्क करेगा, कितना वर्क करेगा 4 मीटर्स. डे 2 पे बी वर्क करेगा एंड ही विल बी वर्किंग 3 मीटर्स. डे 3 ए विल बी वर्किंग 4 मीटर्स एंड डे 4
B will be working 3 meters. So number of days taken will be 4 days. Work will be completed in 4 days if A starts the work. If A starts the work, तो टाइम टेकन इज 4 days. अब उल्टा करते हैं, बी से स्टार्ट करवाते हैं वर्क. तो अगर बी पहले वर्क करेगा तो बी विल बी डिगिंग 3 meters इन द फर्स्ट डे. ए सेकंड डे 4 meters डिग करेगा, 7 meters हो गया 2 दिनों में. और फिर अगेन सेकंड साइकिल में भी सेम सिनेरियो होगा, बी 3 meters, ए 4 meters. तो वर्क विल स्टिल बी कंप्लीटेड इन 4 days. सो क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि ए स्टार्ट करे या बी स्टार्ट करे, फर्क ही नहीं पड़ता है. इन बोथ केसेस द वर्क इज कंप्लीटेड इन 4 days. बट ऐसा हमेशा नहीं होगा. इस केस में ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वर्क वॉज गेटिंग कंप्लीटेड इन इवन नंबर ऑफ डेज. सो इफ वर्क इज गेटिंग कंप्लीटेड इन इवन नंबर ऑफ डेज, इन दैट केस ऑर्डर विल नॉट मैटर. इन दैट केस एफिशिएंसी विल नॉट मैटर. ए ज्यादा एफिशिएंट होगा तो भी वर्क इवन नंबर ऑफ डेज, जैसे 4 days में कंप्लीट हुआ वैसे ही कंप्लीट होगा. बी स्टार्ट करेगा तभी वर्क 4 days में ही कंप्लीट होगा. सो इन दैट केस एफिशिएंसी का चांस, एफिशिएंसी हम सफिशिएंटली नहीं पता लगा सकते कि वर्क फास्टर कंप्लीट कब होगा. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कह रहा है n इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n into 1/a plus 1/b is equal to 1. ठीक है. अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सेकंड स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है b इज ग्रेटर देन a. और b ग्रेटर देन a का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय b इज मोर देन नंबर ऑफ डेज टेकन बाय a. तो दिस इंप्लाइज कि एफिशिएंसी ऑफ a इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ b. बट इज दिस सफिशिएंट? अब अगर तुम एग्जांपल से समझ गए हो तो यू नो कि दिस इज नॉट सफिशिएंट. वी नीड एडिशनल इंफॉर्मेशन, नॉट सफिशिएंट. क्योंकि इसके बाद भी चांसेस आर देयर कि मे बी ए स्टार्ट द वर्क कंप्लीटेड इन इवन नंबर ऑफ डेज. तो उस केस में बी भी स्टार्ट करेगा तभी उतने दिन में कंप्लीट होगा. और मे बी ए स्टार्ट द वर्क एंड इफ वर्क कंप्लीटेड इन नॉन इवन नंबर ऑफ डेज. ठीक है. अगर किसी और तरह से कंप्लीट होता है वर्क, फॉर एग्जांपल वर्क इज गेटिंग कंप्लीटेड इन 5.6 days, तो इन दैट केस वी कैन से फॉर श्योर कि अगर बी वर्क को स्टार्ट करता तो टाइम ज्यादा लगता. ठीक है. सो वी कैन नॉट sufficiently determined from the statement number 2 alone. ये तो पक्की बात है. ओके. अब स्टेटमेंट नंबर 1 में फोकस करते हैं. n is a positive integer such that n into 1/a plus 1/b is equal to 1. अब अगर हम कह रहे हैं कि a is completing the work in a days, b is completing the work in b days, ओके. सो या तो तुम वर्क एलसीएम ले लो, इनका ए और बी का एलसीएम ले लो, तो वर्क कितना आ जाएगा? ए टू बी. दिस इज वर्क मान लिया हमने, और दिस इज टाइम टेकन बाय देम. तो एफिशिएंसी यहां से मिल जाएगी. एफिशिएंसी ऑफ ए विल बी बी एंड एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी ए. नाउ गिवन है हमें कि n into 1/a plus 1/b दिस इज इक्वल टू 1. मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय a into ab. ab से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को. सो नाउ दिस बिकम्स n into ab by a, यानी कि n into b plus a दिस इज इक्वल टू ab. और b वर्क है a का, a वर्क है b का. सो इफ a इज स्टार्टिंग द वर्क, तो डे 1 में वर्क कितना होगा? b. वर्क ऑन डे 2 विल बी a. तो वर्क कंप्लीटेड इन 2 days, 2 days वर्क विल बी इक्वल टू a प्लस b. टोटल वर्क हो रहा है ab, और क्वेश्चन की इक्वेशन कह रही है n इंटू a प्लस b इज इक्वल टू ab. यानी कि n टाइम्स, अगर n पेयर्स है, क्योंकि 2 days का वर्क कितना है? a प्लस b. दिस इज 2 days वर्क. और n एक इंटीजर है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. सो 2 days का वर्क मल्टीप्लाइड बाय n, यानी कि n साइकिल्स ऑफ 2 days में वर्क कंप्लीट होगा. n साइकिल्स ऑफ 2 days में वर्क कंप्लीट होगा. वर्क कंप्लीटेड यानी कि वर्क इज कंप्लीटेड इन 2n days. n साइकिल्स है, 2n days में वर्क इज गेटिंग कंप्लीटेड. क्या ये बात समझ पा रहे हो? और अगर 2n days में वर्क कंप्लीट हो रहा है, n एक इंटीजर है, तो 2n days यानी कि इवन नंबर ऑफ डेज में वर्क इज गेटिंग कंप्लीटेड. एंड इफ इवन नंबर ऑफ डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है तो फिर ऑर्डर मैटर नहीं करता है. इन दैट केस ए स्टार्ट करे या बी स्टार्ट करे, कोई भी स्टार्ट करे वर्क को, वर्क विल ऑलवेज बी कंप्लीटेड इन द सेम टाइम. तो दिस स्टेटमेंट इज सफिशिएंट. सफिशिएंट टू आंसर. आंसर क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं. आंसर क्या है? आंसर ये है कि नो, वर्क विल नॉट गेट डन फास्टर इफ ए बिगिंस द वर्क. वर्क विल गेट डन इन सेम टाइम वेदर ए बिगिंस और बी बिगिंस. ठीक है. सो आंसर तो हमारा होगा कि वर्क विल गेट डन इन सेम टाइम. दिस इज द आंसर. बट आंसर पता लगाना इज सफिशिएंट. ठीक है. आंसर यस या नो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है. आंसर क्या है, क्या सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो पता लगाने के लिए. तो यस, दैट इंफॉर्मेशन सफिशिएंट विद स्टेटमेंट नंबर 1. तो क्वेश्चन कैन बी आंसर विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो अगर समझने में दिक्कत आ रहा है तो वो दिक्कत फील करो, समझने की कोशिश करो. ठीक है. डेप्थ में जाओ. जो मैं कहना चाह रहा हूं तुमसे कि यहां पे क्यों इवन नंबर ऑफ डेज वाला फैक्टर मैटर करता है
उसका एग्जांपल से भी हमने उसको समझा। तो अपने एंड पे एक बार तसल्ली से एग्जांपल लो और सब, या फिर कोई दूसरा एग्जांपल लो, ठीक है, जहां पे कि इवन नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो मान लो कि ए 5 चेयर्स बनाता है, बी 4 चेयर्स बनाता है, और टोटल चेयर्स बनानी है उनको लेटर से 5 + 4 9 का मल्टीपल ले लो, 36 चेयर्स टोटल बनानी है। तो अब ए स्टार्ट करे या बी स्टार्ट करे फर्क ही नहीं पड़ता उससे, टोटल वर्क हमारा हर एक केस में 8 डेज में ही कंप्लीट होगा। Isn't it so? So that is why as long as there are even number of days, it is immaterial कि whether A is starting the work or B is starting the work. So that is what is given with statement number 1 का information. 2 वाले से पता नहीं लगा सकते, that is not sufficient. Okay. So this was a very very good question. And I hope कि तुम इस क्वेश्चन के ट्रैप में नहीं फंसे होगे। ठीक है, अच्छा ये सेम चीज हम ऐसे ही देख सकते थे कि एक सेकंड कि ए अगर 8 डेज वर्क कंप्लीट कर रहा है तो ए का 1 डे वर्क कितना हुआ 1/a। अगर 8 डेज वर्क कंप्लीट है 1 डे का वर्क हो गया 1/a। बी का 1 डे का वर्क हो गया 1/b। ओके, और अगर तो बेसिकली 1/a + 1/b दिस विल बी 2 डेज का वर्क व्हेन दे आर वर्किंग अल्टरनेटली। और क्वेश्चन कह रहा है n × 1/a + 1/b दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 हो गया अपना टोटल वर्क और ये हो गया 2 डेज का वर्क। तो बिल्कुल बेसिक हम टाइम एंड वर्क स्कूल में जैसे करते हैं वैसे समझ लोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये मेथड ज्यादा इजी है। 1/a + 1/b 2 डेज का वर्क हो गया और 2n डेज का वर्क हो जाएगा हमारा, टोटल n × 1/a + 1/b, यानी कि वर्क इज गेटिंग कंप्लीटेड इन 2n डेज व्हिच इज इवन नंबर ऑफ डेज। सो ऑर्डर इज नॉट गोइंग टू मैटर। ओके, क्लियर है? फिर भी कहीं डाउट रहता है तो कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करना। इसके बाद भी अगर इस क्वेश्चन में कोई चीज समझ में नहीं आती है तो एक बार कमेंट में मेंशन करना एंड वी विल रिजॉल्व दैट एज वेल। Okay, next question. Question number 12. 3 boys had a few coffee bite toffees with them. The number of toffees with the second were 4 more than those with the first, and number of toffees with the third were 4 more than those with the second. So how many toffees were there in all? Total number of toffees कितनी थी ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो boy number 1, boy number 2 and boy number 3. Okay, let us say boy number 1 has x toffees. The number of toffees with the second were 4 more than those with the first. तो फर्स्ट के पास में x है, सेकंड के पास हो जाएगी x + 4, एंड दोज विद द थर्ड आर 4 मोर देन दोज विद द सेकंड, देखिए दिस विल बी x + 8। बेसिकली नंबर ऑफ टॉफीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है x + 4 x + 8। अब फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है नंबर ऑफ टॉफीज विद ईच ऑफ देम इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अब 2 का मल्टीपल तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, इनफाइनाइट मेनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली अकेला तो नॉट सफिशिएंट है, नॉट सफिशिएंट। अब सेकंड स्टेटमेंट अकेले कंसीडर करते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट सेइंग द फर्स्ट बॉय एट अप 4 टॉफीज फ्रॉम व्हाट ही हैड। तो ही एट अप 4 टॉफीज, तो अब बची हुई टॉफीज कितनी होगी x - 4। सेकंड बॉय एट अप 6 टॉफीज, बची हुई टॉफीज हो जाएगी x + 4 - 6। एंड थर्ड बॉय गेव देम 2 टॉफीज ईच फ्रॉम व्हाट ही हैड। तो थर्ड वाले 2 टॉफीज दी हैं बॉय 1 को और 2 दी है बॉय 2 को। तो अगर 2 4 टॉफीज दे दिए तो उसके पास बची हुई टॉफीज कितनी होगी -4। So number of toffees with boy 1 are x - 4 + 2, यानी कि this will be x - 2. Those with second boy are x + 4 - 6 + 2, यानी कि x + 4 - 4 which is x. And for the third this is x + 4. And now toffees remaining with each of them form a geometric progression. तो x - 2 x and x + 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो x - 2 x and x + 4 आर इन अ GP। These are in a GP. GP में आ रहा है यानी कि मिडिल वैल्यू का स्क्वायर। इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर ए बी सी जीपी में होते हैं तो क्या प्रॉपर्टी होता है हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अप्लाई दैट प्रॉपर्टी। सो एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म स्क्वायर एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू x - 2 इंटू x + 4। सिंपल इक्वेशन बन रहा है जो सॉल्व हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर + 4x - 2x यानी कि +2x - 8। सो x is coming out to be equal to 4। x equal to 4 आ गया, पुट कर दोगे तुम्हें वैल्यूज मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? x equal to 4 को पुट कर दोगे तो तुम्हें वैल्यूज मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मेनी टॉफीज वर देयर इन टोटल। तो x equal to 4 है, 3x + 4 3x + 12 टोटल नंबर ऑफ टॉफीज है, तो टोटल विल बी 24। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद द स्टेटमेंट 2 अलोन। ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर है? और क्योंकि यूनिक आंसर आ रहा है दैट इज वाई सफिशिएंट। अगर यूनिक नहीं आता आंसर, 2 वैल्यूज मिलती है हमें, तो फिर नॉट सफिशिएंट होता। तो सेकंड अलोन इज सफिशिएंट, ऑप्शन बी शुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन भी हमने सेशंस में, प्रैक्टिस सेशन में किया हुआ है, इफ यू रिकॉल। तो ये क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस सेशन में किया था। द ओनली डिफरेंस वाज कि हमारा क्वेश्चन जो लास्ट लाइन था, क्वेश्चन स्टेप का लास्ट लाइन, पूरा क्वेश्चन डिट्टो एग्जैक्टली यही था, बस लास्ट लाइन जो था, बस वहां पे रेशियो नहीं पूछा था, वहां पे हम टोटल अमाउंट निकाला था। दैट वाज द ओनली डिफरेंस, बट डेटा पूरा यही था, एग्जैक्टली सेम था। अल्फोंसो ऑन दिस डेथ बेड कीप्स हाफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज वाइफ एंड डिवाइड्स द रेस्ट इक्वली अमंग हिज 3 sons Ben, Carl and Dave. Some years later, Ben dies, leaving half his property to his widow and half to his brothers Carl and Dave together, shared equally. When Carl makes his will, he keeps half his property to his widow and the rest he bequeaths to his younger brother Dave. When Dave dies some years later, he keeps half his property for his widow and the remaining for his mother. The mother now has rupees 15,75,000. What was the ratio of the property owned by the widows of the 3 sons in the end? Now ये क्वेश्चन क्योंकि लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है, बार बार डिवाइड करना है, तो यहाँ पे तुम अगर वैल्यूज को शुरू में एज्यूम नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन का डेटा प्रॉपर्ली टेबल करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर श्योर। इज दैट सो? क्या क्लियर है? तो कैसे करेंगे इसको? देखो क्वेश्चन ये कह रहा है अल्फोंसो ऑन हिज डेथ बेड कीप्स हाफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज वाइफ। तो वाइफ को ही इज गिविंग, अल्फोंसोज वाइफ ही इज गिविंग हाफ हिज प्रॉपर्टी एंड रिमेनिंग हाफ इज डिवाइडेड बिटवीन बी सी एंड डी। तो बी सी डी के बीच में ही इज डिवाइडिंग हाफ प्रॉपर्टी, तो एक कैसे कितना आएगा 1/6 1/6 1/6। Then some years later, Ben dies, leaving half his property to his widow. Now B's wife, Ben's wife, he is giving half his property, but Ben's को प्रॉपर्टी कितना मिला 1/6। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेगा वो, तो 1/12 टू हर वाइफ एंड रिमेनिंग इज डिवाइडेड बिटवीन कार्ल एंड डेव, बिटवीन कार्ल एंड डेव। तो कार्ल और डेव को मिलेगा 1/24 एंड 1/24 एंड सो ऑन। इज दैट इट सो? अब इसके बाद फिर यही सेम स्टोरी रिपीट होगा इसके बाद में। क्या क्लियर है? तो बेस्ट अप्रोच क्या होगा ऐसे केस में? देखो पहले वी आर डिवाइडिंग, मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है 1/6, तो 6 से डिवाइड कर रहे हो। सेकंड केस में क्या करो, अगेन यू आर डिवाइडिंग, अब इसको फिर से डिवाइड कर रहे हो। बेसिकली 4 पार्ट्स में 2 पार्ट्स मिल जाएंगे, बेन की वाइफ को 2 पार्ट्स मिलेंगे, 2 पार्ट्स में से एक पार्ट मिलेगा सी को, एक पार्ट मिलेगा डी को। ठीक है, सो इनिशियल वैल्यू को हम मान लेते हैं मल्टीपल ऑफ 6 इंटू 4 और फिर से बाद में डिवाइड करना है तो इंटू 4। ये वैल्यू अगर हम इनिशियली एज्यूम कर ले 96x और इससे इसका भी मल्टीपल यानी 192x या इससे भी बड़ी वैल्यू ले ले, ताकि तो उसके बाद में हमें डिवाइड करना आसान होगा, लास्ट का कंपैरिजन जो है वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे हम टेबल प्रॉपर्ली क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि विडोज सबकी सेपरेटली कंसिडर करनी है सारे ए बी सी डी के लिए। इनफैक्ट ए की जरूरत तो नहीं है हमको, क्योंकि ए तो डिवाइड करके जा ही रहा है, तो बस 3 को ही रखते हैं बी सी डी को। हाँ, एक विडो की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे विल बी हैविंग टोटल 4 रोज फॉर ए बी सी एंड डी। ओके, now let us assume total property with A is 96x या 96 यूनिट्स। ओके, तो अगर 96 यूनिट्स हमने प्रॉपर्टी मान लिया तो एक विडो को कितना मिलेगा, हाफ द प्रॉपर्टी विच इज 48x या 48 मान लेते हैं। 96 टोटल हो गया, 48 मिलेगा एक विडो को। नाउ बी सी डी के बीच में बचा हुआ 48 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इज दैट सो? बचा हुआ 48 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल तो 96 था, और 48 डिवाइड बाई 3 विल बी 16, तो बी को मिलेगा 16, सी को मिलेगा 16, डी को मिलेगा 16। अब बी का 16 डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। इज दैट सो? तो अब बी का 16 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड Ben dies leaving half his property to his widow. So out of the total 16, half will be given to his widow. तो Ben's widow को मिलेगा 8 और remaining 8 will be distributed between C and D. Because B का मामला तो खत्म हो गया, तो C and D के बीच में 4 and 4 डिस्ट्रीब्यूट होगा। Now, when Carl makes his will, तो he keeps half his property to his widow. But Carl के पास कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 16 plus 4 20 हो गया है। तो out of 20, half will be given to his widow, which is 10. Remaining 10 will be given to Dave. Now when Dave dies some years later, he keeps half his property for his widow. Dave के पास टोटल प्रॉपर्टी हो गया 20 plus 10 30. तो out of 30, 15 is for Dave's widow and remaining 15 is distributed for his mother. For his mother, यानी कि 15 अपनी मदर को भी देगा। So this is the amount with Alfonso's widow
एंड क्वेश्चन में वही इन्फॉर्मेशन गिवन है, द मदर नाउ हैज रुपीज 15,75,000, लेकिन दिस वैल्यू 48 plus 15 which is 63 units, this is 15,75,000. ओके, बट क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा है. अगर ये पूछता तो फिर हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता. क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द विडोज ऑफ द थ्री सन्स. द आंसर इज 8:10:15. ऑप्शन बी इज द आंसर. 8:10:15, that would be the answer. Clear? Okay. Next question. Question number 14. If x is greater than 2, x to the power 5 minus 5x cube plus 4x is always divisible by which of the following numbers? Always divisible by x to the power 5 minus 5x cube प्लस 4x. x तो कॉमन आ रहा है स्टेट में, x इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4. अब या तो फैक्टराइज कर पा रहे हो, दिख रहा हो यहाँ पे तो इजी है, अदरवाइज मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो वैल्यू हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4. सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज टी माइनस 4 इंटू टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 1. सो बेसिकली दिस बिकम्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2. So basically if you arrange these numbers in increasing order, so this will be x minus 2 into x minus 1 into x plus 1 into x plus 2. So these are 5 consecutive numbers, x minus 2 into x minus 1 into x plus 1 into x plus 2. 5 consecutive numbers. Or if there are 5 consecutive numbers, if there are n consecutive numbers in general, if n consecutive numbers are multiplied, n consecutive numbers product, so this is always divisible by n factorial. n factorial. So 5 consecutive numbers का product will always be divisible by 5 factorial, which is 120. Option C will be the answer. तो कभी कभी तो 240 से भी हो जाएगा, बट हमेशा नहीं होगा. That is why 120 is the answer. Always divisible by 120 only. कभी कभी 36 से भी होगा, कभी कभी 72 से भी होगा, बट हमेशा 120 से होगा. Okay, so answer will be 120. Question number 14 तो हो गया. 15. Find the area under the graph mod of x plus y plus mod of x minus y less than equal to 20. क्या इसमें कोई एडिशन कंडीशन भी था इसके अलावा, या सिर्फ इतना ही था कि mod of x plus y plus mod of x minus y less than equal to 20? The graph will be like this. तो केसेस बनाओगे यहाँ पे. वन केस विल बी बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव. ठीक है, या फिर बोथ एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई आर पॉजिटिव, ये केस लोगे तो फिर मॉड पॉजिटिव साइन ओपन होगा. बोथ एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई नेगेटिव, उस हिसाब से पूरे के पूरे 4 केसेस बनाओगे. हर एक केस में हमें अलग अलग कंडीशंस मिलेगा, उसके हिसाब से पूरा ग्राफ ड्रॉ करोगे. दिस विल बी द ग्राफ, एंड दैट ग्राफ दिस लाइन इज y इक्वल टू 10. This line is y is equal to minus 10. This line is x equal to 10. And this line is x equal to minus 10. Okay, so this point is 10 comma 10. This is 10 comma minus 10. Minus 10 comma minus 10. And minus 10 comma 10. Basically this length is 20. And this is also 20. सो एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 20, यानी कि दिस एरिया वी नीड. तो दिस एरिया विल बी 20 into 20 which is 400 square units. Option C will be the answer. क्या क्लियर है? ठीक है, next question, question number 16.
You have 25 horses, only 5 horses can run each race at the same time as there are only 5 tracks. What is the minimum races required to identify the fastest 3 horses without using a stopwatch or a timer? कोई stopwatch नहीं है, कोई timer नहीं है, हमें 3 top horses चाहिए, fastest 3 horses. 25 horses है, 5 horses एक बार दौड़ा सकते हैं, तो 5 रेसेस तो हमें सबसे पहले करानी पड़ेगी. बिटवीन 25 horses है तो 1 2 3 4 5 अगर हॉर्स नंबर्स है हमारे, ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकी एक रेस करा लो. तो रेस नंबर 1 हो गया इनका. रेस नंबर 2 में विल बी हैविंग हॉर्स 6 से लेके हॉर्स 10 तक के सारे हॉर्सेस. रेस 3 में विल बी हैविंग हॉर्स 11 से लेके हॉर्स 15 तक के सारे हॉर्सेस. देन रेस 4. टोटल 5 रेसेस तो पहले ही करानी पड़ेगी हमें. एंड हॉर्स 21 से लेके 25. तो दीज 5 रेसेस विल बी हैविंग टोटल 25 हॉर्सेस. अब इनमें से कुछ टॉपर्स निकलेंगे हमारे. लेट अस से हॉर्स 1, horse 6, horse 11, horse 16 and horse 21. These are the fastest horses in each group. Okay. तो अगर हमें क्वेश्चन में फास्टेस्ट हॉर्स चाहिए होता तो बस एक रेस और कराएंगे, रेस नंबर 6, जिसमें कि सारे रेसेस के विनर्स को दौड़ा देंगे. तो हॉर्स नंबर 1, हॉर्स नंबर 6, हॉर्स नंबर 11, हॉर्स नंबर 16 एंड हॉर्स नंबर 25. बस इनको दौड़ा दोगे, ठीक है, बस इनको दौड़ा दोगे. और उनमें जो टॉपर होगा, लेट अस से दैट इज हॉर्स नंबर 1. सो इफ दैट इज द फास्टेस्ट हॉर्स, तो बस काम खत्म हो गया. फास्टेस्ट तो हमें मिल गया. बट क्वेश्चन कह रहा है फास्टेस्ट 3 चाहिए. और ये चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि फास्टेस्ट 3 आर नॉट नेसेसरली दीज 3 हॉर्सेस. भाई रेस नंबर 6 में लेट अस से दिस इज द फास्टेस्ट हॉर्स, दिस इज द सेकंड फास्टेस्ट, दिस इज द थर्ड फास्टेस्ट, बट सेकंड और थर्ड फास्टेस्ट आर नॉट नेसेसरली दीज वंस. व्हाई? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है. लेट अस से एक छोटा वाला एग्जांपल लेते हैं. देयर आर 9 पर्सन्स, ठीक है, 9 पर्सन्स है हमारे पास. A, B, C, D, E, F, G, H एंड I. नो एक टेस्ट लिया, सरप्राइज टेस्ट लिया 9 बच्चों का. अब इनके नंबर्स आएंगे. लेट अस से नंबर्स ऑफ A आर 40 आउट ऑफ 40, B के नंबर्स है 39, C के नंबर है 38, D के 36, E के 34, F के 31, G के 29, H के 13 और I के 6. अब हमें नंबर्स नहीं पता है, ठीक है, हमें चाहिए कि 3 सबसे इंटेलिजेंट बच्चे कौन से हैं. तो उसके लिए हमने क्या किया, और हमारे पास एक बार में हम 3 को ही टेस्ट कर सकते हैं, सेम हॉर्सेस जैसा. तो हमने पहले ABC को टेस्ट किया, फिर DEF का सेकंड वाला ग्रुप है उनको टेस्ट किया, और थर्ड में GHI को टेस्ट किया. अब जब ABC को तुमने निकाला 3 में से, तो तुमने तीनों के मार्क्स को कंपेयर किया, या एक मशीन ने फीड किया मार्क्स, मशीन को पहले से मार्क्स पता है, तुम्हें नहीं पता है. तो मशीन ने कहा कि A के मैक्सिमम मार्क्स है 40. तो यहां पे A टॉप कर गया, जैसे हॉर्सेस की रेस में टॉप कराया वैसे यहां पे A टॉप कर गया. अब सेकंड वाले में D टॉप कर गया, और थर्ड वाले में G टॉप कर गया 29. अब तुमने A, D और G को लिया. नाउ बिटवीन A, D एंड G यू नो दैट A के 40 मार्क्स है, D के 36 है, G के 29 है. तो फर्स्ट विल बी A, सेकंड विल बी D एंड थर्ड विल बी G. बट आर दे एक्चुअली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन द टोटल लिस्ट? क्या ये केस है? नहीं. देखो A तो टोटल में भी टॉप आएगा और यहां भी टॉप आएगा, तो A के लिए तो फर्स्ट टॉपर के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट सेकंड वाले के साथ प्रॉब्लम है, बिकॉज B द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स वाला बंदा फास्टेस्ट से तो हार जाएगा ना, टॉपर से तो हार जाएगा ना, तो टॉपर से डेफिनेटली हारेगा. प्रॉब्लम ये हुआ कि B का भी सेम ग्रुप में हमने रख लिया जिस ग्रुप में A था. अगर A के अलावा किसी भी ग्रुप में जाता B अगर सेकंड वाले ग्रुप में होता तो वो टॉपर होता, वो थर्ड ग्रुप में जाता तो वो टॉपर होता, बस फर्स्ट वाले ग्रुप में क्योंकि वो टॉपर के साथ ही था तो वो हार गया उससे. इज दैट इट? सो दैट इज व्हाई जो हमारा कंपैरिजन किया हमने यहां पे, तो यहां पे जो D पर्सन मिला, दिस इज नॉट द सेकंड इन टोटल. टोटल में सेकंड हमारा यही बंदा है. और सेम लॉजिक फॉर द C एक्चुअल में थर्ड आना चाहिए पूरे कॉम्प्रिहेंसिव में, बट C इस कॉम्पिटिशन में ये दिख रहा है बिकॉज वो पहले ही बेचारा बाहर हो गया. सेम इज द केस कि जब वर्ल्ड कप या कोई भी ऐसा टूर्नामेंट कराते हैं तो वहां पे दे ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑल गुड नंबर ऑफ टीम्स, ऑल गुड टीम्स इन ऑल ग्रुप्स. ऐसा नहीं करते कि एक ग्रुप में सारी अच्छी टीम है, एक ग्रुप में सारी खराब टीम है, बिकॉज अगर एक ग्रुप में तुम सारी की सारी अच्छी टीम्स को रख दोगे तो सम गुड टीम्स विल बी एलिमिनेटेड इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ. तो क्या ये लॉजिक समझ पा रहे हो? तो फॉर द सेम रीजन जब हमने हॉर्सेस का रेस नंबर 6 कराया तो वी आर नॉट सर्टेन कि हॉर्स नंबर 6 एंड हॉर्स नंबर 11 आर सेकंड एंड थर्ड इन टोटल ग्रुप. तो इसके लिए हमें क्या कॉशियस रहना पड़ेगा कि जो सेकंड फास्टेस्ट हॉर्स होगा दैट कैन ओनली बी डिफीटेड बाय द फास्टेस्ट हॉर्स. तो चांसेस आर कि जो फास्टेस्ट हॉर्स है उसके ग्रुप में जो सेकंड आया हो वो सेकंड फास्टेस्ट हो.
क्या ये बात समझ पा रहे हो? सिमिलरली जो थर्ड फास्टेस्ट हॉर्स होगा दैट कैन बी डिफीटेड बाय द सेकंड फास्टेस्ट एंड द फास्टेस्ट, एज वाज द केस इन दिस एग्जांपल कि सी हमारा एक्चुअल में थर्ड था बट सी भी बेचारा बाहर हो गया क्योंकि थर्ड फास्टेस्ट था बट वो फर्स्ट और सेकंड वाले ग्रुप में था। तो फर्स्ट वाला जो ग्रुप है, जो टॉपर का ग्रुप है, यानी कि हॉर्स नंबर 1 इज द टॉपर, तो फास्टेस्ट वाले ग्रुप में जो सेकंड और थर्ड आए हैं दोस कैन बी एक्चुअल सेकंड एंड थर्ड, यानी कि वी विल बी कंसीडरिंग दीज टू हॉर्सेस एज वेल इन द फर्दर रेस नंबर 7 कराएंगे। फास्टेस्ट तो मिल गया हमें, रैंक 1 तो मिल गया, रैंक 1 मिल गया है, रैंक 1 इज हॉर्स नंबर 1, बट रैंक 2 और 3 के लिए हमें रेस नंबर 7 चाहिए होगा। अब रेस नंबर 7 में कौन कौन दौड़ेगा? हॉर्स नंबर 1 को दौड़ाने की जरूरत नहीं, वो तो फास्टेस्ट है, ठीक है, बट हॉर्स नंबर 2 और 3 को दौड़ाएंगे। सिमिलरली हॉर्स नंबर 6 इज द सेकंड फास्टेस्ट इन दिस रेस, बट इसके ही ग्रुप में एक पर्सन होगा हॉर्स नंबर 7, एक हॉर्स होगा हॉर्स नंबर 7। अब ये बेचारा हो सकता है थर्ड फास्टेस्ट हॉर्स हो, सेकंड फास्टेस्ट तो नहीं हो सकता है क्योंकि बिकॉज सेकंड फास्टेस्ट जो आया है यहाँ पे उससे ही हार गया है, तो सेकंड तो पॉसिबल नहीं है, बट थर्ड हो सकता है, तो हॉर्स नंबर 7 को भी कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ, हॉर्स नंबर 8 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हॉर्स नंबर 8 अपने ग्रुप में ही थर्ड आया है और वो सेकंड फास्टेस्ट से हारा है, मतलब कि जो सेकंड आया रेस नंबर 6 में उससे हारा है, तो किसी भी केस में ही कैन नॉट बी द थर्ड, तो हॉर्स नंबर 8 को कंसीडर नहीं करना है। बट सिमिलरली हॉर्स नंबर 11 को तो कंसीडर करना पड़ेगा, हॉर्स नंबर 6 को कंसीडर करना पड़ेगा, तो इन दोनों को भी दौड़ाओगे इस रेस में। एंड इन दिस रेस जो फर्स्ट आएगा दैट इज सेकंड फास्टेस्ट और जो सेकंड आएगा दैट इज थर्ड फास्टेस्ट। टोटल रेसेस नीडेड विल बी 7 रेसेस, ऑप्शन बी। तो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, जब तक अपने बेस्ड क्वेश्चन को खुद से लिख के खुद से करके समझने की कोशिश नहीं करोगे, ये एग्जांपल तो दिया, जब तक इसको समझने की कोशिश नहीं करोगे, एग्जांपल देने का पर्पस यही था ताकि तुम्हें बेटर समझ में आए ये क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों हमें कॉशियसली 7th रेस कराना पड़ेगा। तो टोटल 7 रेसेस विल बी नीडेड एंड दीज एग्जैक्टली विल बी दोस 7 रेसेस, कोई भी और रैंडम 7 रेसेस नहीं करानी है, यही 7 रेसेस करानी है। क्लियर है? फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। ओके, सो आंसर इन दिस क्वेश्चन विल बी 7 रेसेस इन टोटल विल बी नीडेड, मिनिमम रेसेस। अगर मैक्सिमम करानी हो तो मैक्सिमम कितनी कराते रहो, मिनिमम विल बी 7, उससे कम में बता नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 नाउ। तो दिस इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम में या तो अच्छे से समझ में आ रहा हो तो बढ़िया से करो, अदरवाइज ये क्वेश्चन अवॉइड करने वाला था। इफ mdx यानी मॉड ऑफ x, इफ mn यानी मिनिमम ऑफ x एंड y, ma यानी मैक्सिमम ऑफ a b एंड c, सो दीज आर द फंक्शंस को डेफिनेशन दे दिया इन्होंने, डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस यूज्ड। गिवन दैट a is greater than b, then the relationship ma mda mna b is equal to mn a md and so on does not hold if। कब ये होल्ड नहीं करेगा? गिवन क्या है? a इज ग्रेटर देन b। तो बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज कि a और b की वैल्यूज को एज्यूम कर लो, कंडीशंस के हिसाब से एज्यूम कर लो। पहली कंडीशन क्या है? a इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0, ठीक है, तो a और b दोनों का नेगेटिव मान लो, बट a को ग्रेटर देन b रखो और देखो कि क्या ये होल्ड कर रहा है या नहीं होल्ड कर रहा है। अगर नहीं होल्ड कर रहा है तो दिस कुड बी द आंसर, इजंट इट सो? क्योंकि और किसी में तो a लेस देन 0 b लेस देन 0 नहीं है, यानी कि हाँ दिस विल बी द आंसर, श्योरली द आंसर, अगर होल्ड नहीं कर रहा है तो दोनों को नेगेटिव रखना है, बट a ग्रेटर देन b होना चाहिए बिकॉज दैट इज गिवन कंडीशन। तो मान लेते हैं, लेट अस से कि a इज -2 एंड b इज -3। ओके, नाउ फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड है हमारा ma mda mn a b। सो a और b में सिंस a इज ग्रेटर देन b, तो mn a b में मिनिमम वैल्यू क्या होगा? a और b में b मिनिमम होगा, तो यहां से रिजल्ट मिल जाएगा हमको b। और मॉड ऑफ a b का मैक्सिमम वैल्यू, नाउ सिंस a और b में से हमने दोनों को नेगेटिव लिया है तो मॉड ऑफ a मैक्सिमम होगा, यानी डेफिनेटली यहां से रिजल्ट क्या आएगा? मॉड ऑफ a। और राइट हैंड साइड में दिस इज mn a md ma a b, तो मैक्सिमम ऑफ a b कौन होगा? a होगा, दिस विल बी a, और a का मॉड ले लो, सो दिस विल बी मॉड a। तो बिटवीन a एंड मॉड a मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली a होगा बिकॉज a नेगेटिव है। सो कैन मॉड ऑफ a विल बी इक्वल टू a, क्या ये इक्वल टू a होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज a इज लेस देन 0, a नेगेटिव है और मॉड ऑफ a पॉजिटिव होगा, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो दिस इज नॉट होल्डिंग, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द आंसर, नहीं होल्ड कर रहा, सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्या है? क्लियर है? ठीक है, और वैल्यूज मैंने वैसे रखा था बट वैल्यूज को पुट नहीं किया, पुट करके तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पुट कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही केस लो,
तो भी समझ में आ रहा है कि मॉड ऑफ ए एक साइड में आ रहा है और एक साइड में आ रहा है ए, बिकॉज एक और मॉड ए के बीच में अगर ये तुम्हारा पॉजिटिव है तो भी ये रिजल्ट आएगा मिनिमम वैल्यू के लिए, निगेटिव है तब भी ये मान सकते हो बिकॉज मिनिमम लेना है हमें। जब मैक्सिमम लेना है तो उस केस में तो मॉड ए आएगा बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी, तो फॉर श्योर मैक्सिमम बिटवीन मॉड ए एंड बी विल बी मॉड ए, पक्की बात है। बी पॉजिटिव होगा तब भी, बी निगेटिव होगा तब भी, बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी इन एनी केस, तो मॉड ऑफ ए बी ग्रेटर देन बी होगा फॉर श्योर। ठीक है, सो मैक्सिमम तो डेफिनेटली मॉड ए आएगा। सिमिलरली ए और मॉड ए के बीच में मिनिमम वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी ए पॉजिटिव है तब भी, नेगेटिव है तब भी। ओके, सो मॉड ए और ए इक्वल कब होंगे, इक्वल तब होंगे मॉड ए विल बी इक्वल टू ए if a is greater than 0, but mod a will not be equal to a if a is less than 0, and since a is greater than b, तो अगर a ही less than 0 है तो b भी less than 0 होगा। So in this case when a is less than 0 and b is less than 0, this property is not holding, तो option A will be the answer। क्लियर है? हाँ, वैल्यूज वाला चीज इसलिए बताया था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो बस वैल्यूज पुट कर दो और वैल्यूज पुट करके आइडेंटिफाई कर लो, देख लो एक बार कंडीशंस के हिसाब से। ओके, option A will be the answer in this case. Next question, question number 18. X, Y and Z are in geometric progression with common ratio R. Given that x minus 1 by x is equal to A, y minus 1 by y is equal to B, and z minus 1 by z is equal to C, then find R plus 1 by R in terms of A, B and C. In terms of A, B and C, R plus 1 by R का वैल्यू क्या होगा? ओके, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? गिवन क्या है, यहां भी तुम क्या कर सकते हो, वैल्यूज पुट, वैल्यूज ले लो, सबसे आसानी से वैल्यू सॉल्यूशन निकल आएगा हमारा। तो वैल्यूज क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड जीपी में है, दीज आर इन जीपी, लेट अस अज्यूम दीज नंबर्स आर 1 to 4 मान लो, 1 to 4 मान लो, जीपी में है। सो ए विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, देखिए 1 minus 1 by 1 0, b will be equal to y minus 1 by 2 minus 1 by 2 3 by 2, c will be equal to z minus 1 by z 4 minus 1 by 4 which is 15 by 4। r क्या है, r is equal to 2, कॉमन रेशियो 2 है, सो r plus 1 by r will be equal to 2 plus half which is equal to 5 by 2। सो ऑप्शन a plus b by c क्या होगा, दिस इज 3 by 2 अपॉन 15 by 4, सो 3 by 2 into 4 by 15 यानी 2 by 5 आ जाएगा, डेफिनेटली 5 by 2 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 5 by 2, तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी a plus c by b, दिस इज इक्वल टू a plus c यानी 0 plus 15 by 4, 15 by 4 डिवाइड by 3 by 2, दिस बिकम्स इक्वल टू 5 by 2, तो ऑप्शन बी शुड बी द आंसर। परिचय कर रहा है सीओडी को भी, सीओडी में से कोई मैच तो नहीं कर रहा है, तो ए बाई सी क्या होगा, ए बाई सी तो 0 आ जाएगा, this is 0, this is 0, and definitely option B is the answer। ओके, क्लियर है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है, बिकॉज अदरवाइज हमारे लिए क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल होता है। अगर यहाँ पे तुम एक्स वाई जेड को जीपी में मान रहे हो और फिर उसके केस में सॉल्व करोगे कि एक्स है, वाई को कह सकते हो वाई इज इक्वल टू एक्स आर, जेड इज इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर एंड देन आर प्लस 1 बाई आर, दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर। नाउ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है, बी इज इक्वल टू वाई माइनस 1 बाई वाई, so y minus 1 by can written as xr minus 1 upon rx, c will be equal to z minus 1 by z which is equal to xr square minus 1 upon x square xr square। ओके, बट अब इसके बाद में सॉल्व करोगे तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी और सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और फिर सारे ऑप्शन को टेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं। आर प्लस 1 बाई आर चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर एक्स वाई जेड होता तब तो दिक्कत नहीं होती बिकॉज एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया मान लो, दिस विल बी इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स आर, दिस कैन बी रिटन एज जेड प्लस एक्स अपॉन वाई, बट जेड प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू, इनमें से कौन सा वैल्यू होगा वो कैसे पता लगाओगे?
ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ABCD is a rectangle with area 24 square units. A rectangle with area 24 square units. Diagonals intersect at point P at point P and at E नहीं है, and E, and E is the midpoint of BC such that AE intersects at diagonal BD at point Q. तो find the area of triangle AQP. Area of triangle AQP. A, B, C, D. So diagonals are intersecting at point P. Okay, this is the point P, and E is the midpoint of BC. ठीक है. So when we are connecting AE, this is intersecting diagonal BD at point Q. This is point Q. So find the area of triangle AQP. This area is what we are concerned about. Okay. देखो, first things first. Area of rectangle ABCD is 24. तो area of ABCD is 24. So can we say area of triangle ABD क्या होगा? Half of that. Triangle ABD का area will be half of that. लेकिन this will be equal to 12. Now area of triangle ABP will be half of that as well. Because क्या है? P will be midpoint. P will be midpoint of AC as well as BD. Isn't it so? तो ट्रायंगल ABD दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा बिकॉज AP क्या है? मीडियन होगा. AP is median of that triangle ABD. तो ट्रायंगल ABP का एरिया आ जाएगा इक्वल टू 6. इज दैट क्लियर? क्या ये पार्ट क्लियर है? तो आंसर डेफिनेटली 6 से तो कम है ही है, वो तो देख ही रहा है. Isn't it so? क्लियर है? अच्छा, इफ वी ड्रॉ दिस लाइन हियर कनेक्टिंग P एंड D बिकॉज P इज द मिड पॉइंट. ठीक है, और ये जो लाइन होगा दिस लाइन विल बी, लेट अस से दिस पॉइंट इज, क्या मान ले इसको, x मान ले, x मान लेते हैं. सो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू AB. AB के पैरेलल होगा. सो थ्रू पैरेललाइज आर देयर AB एंड XE. ठीक है, सो BP इज द बेस. इफ टू पैरेललाइज आर देयर AB and XE. So two triangles are being formed by the same base. Same base हमने लिया EP, so that is forming one triangle equal to EBX. Second triangle is EAP. एक सेकेंड ये P था, X तो वहां पे था. EBP and EAP. तो क्या दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम नहीं होगा? सेम होगा एरिया दोनों केसेस में. तो ट्रायंगल EBP का एरिया क्या होगा? दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल EBP. दिस विल बी हाफ ऑफ दैट ऑफ ट्रायंगल PBC. देखिए दिस एरिया विल बी इक्वल टू, भाई टोटल का हाफ हुआ 6 12 का हाफ हुआ 6 और 6 का भी हाफ, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 3. तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी 3. तो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल AEP will also be 3. बिकॉज अगर ये बात समझ में आ गई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AEP इज 3, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP उससे छोटा होगा, यानी कि आंसर विल बी डेफिनेटली 2. बिकॉज 2 के अलावा कोई और आंसर होना पॉसिबल ही नहीं है. 3 से छोटा आंसर होना चाहिए हमारा. क्या ही क्लियर है? ठीक है, सो डेफिनेटली आंसर विल बी इक्वल टू 2. ऑप्शन ए 2 विल बी द आंसर. पक्की बात है. क्या ही क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन
ADBC is a semicircle with the center C. A rectangle CDEM is drawn with CD as one of the sides such that area of the semicircle in rectangle is in the ratio 2:3. If line CE intersects arc of semicircle at point P and side CD is equal to 4 units, then find the length of line PB. Length of line PB. ADBC is a semicircle. Center है C पे. This is the center. Rectangle CDEM is drawn with CD as one of the sides such that area of the semicircle rectangle is in the ratio 2:3. Side CD is equal to 4 units and C is the center. CD क्या है हमारा रेडियस है, तो 4 is equal to radius. So AC is also equal to 4. CB will also be equal to 4. So area of semicircle क्या हो जाएगा? Area of semicircle and rectangle का रेशियो है 2:3. So let us say this length is x. Semicircle area will be pi r square by 2. And for rectangle, this will be 4 into x, r into x. So pi into 4 square by 2, 8 pi is to 4x, which will be 2 pi is to x. And this ratio is given as 2 pi is to 3. So यहाँ से x equal to 3 आ गया. Isn't it so? X is equal to 3 now. So this is equal to 3. Then line CE, connect line CE, intersects the arc of the semicircle at point P. So this is point P. And question is asking about line PB, line length PB. So to find out PB, drop a perpendicular from point P on CB. This is also perpendicular, this is also perpendicular. So both these lines are parallel. And since ये angle तो common है, lines are parallel, so this angle will be equal to this one, and ये दोनों angles right angle है, so these triangles will be similar. कौन कौन से? CP, let us say इसको x मान लेते हैं, तो triangle CPX will be similar to triangle CEM. This side is 4, this side is 3, right? This is 3, this is 4, so CE will be equal to 5. Mathematical template है 3, 4, 5 का, CE will be equal to 5. Isn't it so? Clear है? Okay, तो CM is equal to 4. एक सेकेंड, CM is equal to 3. CM is equal to 3. This is equal to 4. And this is equal to 5. और यही सेम रेशियो हमारा होगा छोटू वाले ट्रायंगल में भी. इन छोटू ट्रायंगल दिस CP लेंथ कितना है? This is equal to radius of the semicircle, which is equal to 4. This is equal to 4. Total 5 था. CP is 4 by 5 of CE. But basically, CP upon CE, this will be equal to CX upon CM. This will be equal to XP upon ME. और CP by CE क्या है? 4 by 5 है. 4 by 5 हुआ. तो क्या यहां से तुम्हें XP की वैल्यू मिल जाएगा? XP by ME is equal to 4 by 5. ME is equal to 4. तो XP will be equal to 4 by 5 times ME. यानी 4 by 5 into 4, 3.2. 3.2. और similarly CX will be equal to 4 by 5 times CM. और CM is equal to 3. तो 4 by 5 into 3, 2.4. ओके, CX आ गया इक्वल टू 3.4 और 2.4 और PX आ गया इक्वल टू 3.2. तो अब फोकस करना है हमें इस ट्रायंगल पे, ऑन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज दिस ट्रायंगल हैज द हाइपोटेन्यूज एज इक्वल टू PB. तो इसको सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से इसको सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं. This is B, this is P, and this is X. अच्छा, CX is equal to 2.4. अगर CX 2.4 है तो XB क्या होगा? XB will be, this will be CB minus CX. So this will be 1.6. और PX is 3.2. This is 3.2. So PB will be square root of 3.2 square plus 1.6 square. So basically this will be 1.6 times root 5 or 8 by 5 times root 5. Option C will be the answer. 8 by 5 times root 5 will be the answer in this question. Question number 20.
क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, क्लियर है? सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन. आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे. कहीं भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल. भाई तुम्हारे लिए इतना एफर्ट किया है तो लाइक करना जरूरी है, तुम्हारा बनता है. और साथ में कमेंट में जरूर फीडबैक देना तुम्हें सेशन कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया. कहीं पे किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना. एंड फॉर एनी क्वेश्चन और क्वेरीज यू कैन ऑलवेज मैसेज योर टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल मैथोलॉजिकल फॉर दैट एज वेल. That's all. Bye bye. Take care. Keep learning and best of luck for your results.